कोटि वैष्णववृंद की जय। निताय गौरनंदन। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। So we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 5, Narada's instructions on Srimad Bhagavatam, text number 26. So, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tatranvaham Krishna Katha Pragayatam Anugrahena Shranavam Manoharaha Ta Shraddhaya Me Anupadam Vishrinvataha Priya Shravashi Anga Mama Bhavat Ruchihi Tatranvaham Krishna Katha Pragayatam. Don't rush. आप श्लोक को देख के रश के करें. Go slow. Then you won't miss it. Tatranvaham Krishna Katha Pragayatam. Anugrahena Shrinavam Manoharaha. Anugrahena Shrinvam Manohara. Ta Shraddhaya Me Anupadam Vrishrinvataha. Ta Shraddhaya Me Anupadam Vishrinvataha. Priya Shravasi Angamama Bhavadruchihi. Priya Shravasi Angamama Bhavadruchihi. Tatranvaham Krishna Katha Pragayatam. Anugrahena Shrinavam Manohara. Ta Shraddhaya Me Nupadam Vrishinvataha. Priya Shravasi Angamama Bhavedruchi. Tatranvaham Krishna Katha Pragayatam. Anugrahena Shrinavam Manohara. Ta Shraddhaya Me Nupadam Vrishinvata. Priya Shravasi Angamama Bhavedruchi. Read please. Tatranvaham Krishna Katha Pragayatam. Anugrahena Shrinavam Manohara.
ता श्रद्धया मेऽनुपदं वृषिन्वता प्रिया श्रवसी अङ्गममा भवद्रुचिः तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायकम् तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायकम् अनुग्रहेण शृण्वं मनोहर ता श्रद्धया मेऽनुपदं विष्णुवता प्रिया श्रवसी अङ्गममा भवद्रुचिः. Ladies, please. तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायकम् अनुग्रहेण शृण्वं मनोहर ता श्रद्धया मेऽनुपदं वृषिन्वता प्रियश्रवसी अङ्गमम भवद्रुचिः. Tatra, thereupon, anu, every day, aham, I, Krishna Katha, narration of Lord Krishna's activities, pragayatam, describing, anugrahena, by causeless mercy, ashrinvam, giving oral reception, manaha haraha, attractive, ta, those, shraddhaya, respectfully, me, unto me, anupadam, every step, vishrinvataha, hearing attentively, Priyashravasi, of the personality of Godhead, Anga, O Vyasadev, Mama, mine, Abhavat, it so became, Ruchihi, taste. Translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. O Vyasadev, in that association and by the mercy of those great Vedantists, I could hear them describe the attractive activities of Lord Krishna. And thus, listening attentively, my taste for hearing of the personality of Godhead increased at every step. Purport. Lord Sri Krishna, the absolute personality of Godhead, is attractive not only in his personal features, but also in his transcendental activities. It is so because the Absolute is absolute by his name, fame, form, pastimes, entourage, paraphernalia, etc. The Lord descends on this material world out of his causeless mercy and displays his various transcendental pastimes as a human being, so that human beings attracted towards him become able to go back to Godhead. Men are naturally apt to hear histories and narrations of various personalities performing mundane activities without knowing that by such association one simply wastes valuable time and also sometimes becomes addicted to the three qualities of mundane nature. Instead of wasting time, one can get spiritual success by turning his attention
to the transcendental pastimes of the Lord. By hearing the narration of the pastimes of the Lord, one contacts directly the personality of Godhead. And as explained before, by hearing about the personality of Godhead, from within all accumulated sins of the mundane creature are cleared. Thus, being cleared of all sins, the hearer gradually becomes liberated from the mundane association and becomes attracted to the features of the Lord. Narada Muni has just explained this by his personal experience. The whole idea is that simply by hearing about the Lord's pastimes, one can become one of the associates of the Lord. Narada Muni has eternal life, unlimited knowledge and unfathomed bliss, and he can travel all over the material and spiritual worlds without restriction. One can attain to the highest perfection of life simply by attentive hearing of the transcendental pastimes of the Lord from the right sources, as Sri Narad heard them from the pure devotees, Bhakti Vedantas, in his previous life. This process of hearing in the association of devotees is specially recommended in this age of Koral Kali. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Tamal Krishna Goswami Iti Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasadya Satarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So, Hare Krishna. आज श्रीमद् भागवतम का जो वर्स है बहुत बहुत सुंदर है. Actually all the verses of Bhagavatam are very nice. और today being very special कि आज पांडव निर्जल एकादशी है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हम लोग सोच रहे होंगे हम लोग एकादशी में क्या क्या है. हम लोग सब कोशिश करेंगे निर्जल करने के, कोशिश करना चाहिए. वी शुड टेक ऑस्टेरिटी. भगवान ऋषभदेव कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का, मतलब ह्यूमन लाइफ मिला है तो हम लोगों को तपस्या करना चाहिए, इसीलिए ये बना है. तो एवरी डिवोटी शुड गिव एन एफर्ट. अभी आजकल हम लोग बहुत लेजी हो जाते हैं. कोई बोले बीमार है, हमें भूख लगे है, फिर कोई फिलोसोफाइज करेगा हमें भूख लगे तो ध्यान नहीं लगे, तो इससे अच्छा खा लो और ध्यान करो. कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा सेक्रीफाइस हम लोग कर दिया है. नॉट कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, बट वी हैव सेक्रीफाइस कृष्ण इन आवर लाइफ्स. हम लोग सब भगवान के धाम में थे और भगवान को छोड़ दिया. भगवान सबसे बड़े, भगवान से बड़ा तो धन है नहीं, भगवान से बड़ा ये सृष्टि नहीं है, भगवान से बड़ा नॉलेज नहीं है, भगवान से बड़ा जो 6 ऐश्वर्य है कुछ नहीं है. तो अगर हम लोग सोचेगा कि हम लोग एक रोज फास्ट करेगा, और खाली फास्टिंग की बात नहीं है, ब्रिंगिंग इट होम टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द श्लोक, ये सबसे डिफिकल्ट एक्टिविटी है. क्या सबसे डिफिकल्ट एक्टिविटी है? सुनना. और विशेष करके कलयुग में यही सबसे बड़ा बीमारी है. कोई व्यक्ति सुनना नहीं चाहता. बच्चे नहीं सुनना चाहते हमारे, पत्नी नहीं सुनना चाहती है, पति नहीं सुनता है. दुनिया भर के डिप्रेशन के प्रॉब्लम है कि कोई हम लोग के सुने नहीं है. इवन कभी कभी हम लोग मंगता तलनवा भी करे तो कोई सुने ना नहीं रहे तो हम लोग के डिप्रेशन हो जाए. तो व्यासदेव जी के नारद जी बोले हैं, इन दैट एसोसिएशन. कौन एसोसिएशन? कौन एसोसिएशन के रिफर करें? डिवोटी एसोसिएशन और भक्ति वेदांतस और प्योर डिवोटीज और प्रीवियस लाइफ के एसोसिएशन. Where did he get the association of the Bhakti Vedantas? In the previous life. In the previous life.
तो प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि हम लोग जो भी भक्ति के स्तर पे है, वी ऑल्सो कैरी अ बैगेज ऑफ भक्ति. मटेरियल बैगेज तो है ही जो हम लोग को भगवान से दूर रखता है, लेकिन हम लोग के स्पिरिचुअल लाइफ के बैगेज भी है. कितना हम लोग कमाई किया है स्पिरिचुअल लाइफ के, उसके ऊपर उसके इफेक्ट है. तबे से हरिनाम चिंतामणि बोले हैं कि डिफरेंट डिवोटीज में बिहेव इन डिफरेंट वेज. अलग अलग भक्त लोग अलग अलग व्यवहार कर सकते हैं. किसी को प्रसाद लेने के लिए एग्जाम्पल दिया नेक्टर हरिनाम चिंतामणि में, जैसे समटाइम्स सम डिवोटी में हैव अ हैबिट ऑफ ईटिंग अ लॉट ऑफ प्रसाद. तो वी जोक ना, प्रभु जी आज गोवर्धन पूजा है, आपका तो गोवर्धन पूजा मतलब यू आर ईटिंग सो मच. एक्चुअली हरिनाम चिंतामणि बोलता है दिस बिकम्स एक्चुअली आई वैष्णव अपराध, क्योंकि वो प्रीवियस लाइफ का बैगेज कैरी कर रहा है. बैगेज कैरी करना मतलब दे हैव हैबिट्स दैट दे हैव ब्रॉट इनटू दिस लाइफ. द हैबिट्स आर डिफिकल्ट टू चेंज, राइट. सो व्हाट इज द इम्पैक्ट जो उसका है, वो हम लोग अभी कैसे बिहेव करते हैं, ये हम लोग के प्रीवियस कर्मा के इम्पैक्ट है. बट हाउ विल वी बिहेव इन द फ्यूचर, दैट इज इन आवर कंट्रोल, दैट वी कैन कंट्रोल नाउ. तो फर्स्ट पॉइंट है कि प्रीवियस लाइफ के एक्टिविटीज हम लोग के इम्पैक्ट करें. ठीक है, तो इसके दुई रकम से सबको अप्लाई करें अपन लाइफ में. अब ऐसे नहीं सोचो कि हम उल्टा उल्टा करता है तो बोले हम कौन सी करिए, हम कर्म ऐसा नहीं. दैट यू हैव टू चेंज. लेकिन दूसरा कोई कैसे बिहेव करे है, वी कैन ऑलवेज अप्रिशिएट एंड टेक द अंडरस्टैंडिंग कि सर्टन पीपल में स्पीक लाइक दिस, सर्टन पीपल में बिहेव लाइक दिस, certain people interact in a certain way. It is because this is what they are carrying from the previous life, and that what has made them what they are today. तो अगर हम लोग के अपन और दूसरे के बारे में से समझ रहे, completely your mind is free from stress. हम लोग स्ट्रेस से, हम लोग टेंशन से मुक्त हो जाएगा, हमें कोई अपसेट करेला बात नहीं रही. तो that is the impact of. तो नारद जी बोले हैं from mercy of those great Vedantists. So I could hear them describe the attractive activities of Lord Krishna. तो फर्स्ट पार्ट में बोले हैं कि नारद जी बोले कि I could hear them. ना, अभी आप लोग बात करेगा तो हम बगल में खड़ा रहेंगे, हम सबसे बोले I could hear you. मैं सुना वो लोग क्या बात कर रहे हैं. तो स्पिरिचुअल, ये तो स्पिरिचुअल टॉपिक है. कृष्णस टॉपिक इज ट्रांसेंडेंटल. तो वैसे आप आज भी वृंदावन में जाइए, मायापुर में जाइए, देयर मेनी टेम्पल्स दुनिया भर में हैं. वी हैव अ रूल और गाइडेंस, नॉट अ रूल, इट्स नॉट कंपल्सरी, बट वी कैन डू थिंग्स लाइक दिस कि द होल डे द टेम्पल प्लेज प्रभुपाद's लेक्चर्स, और like Bhagavatam class is happening. So Bhagavatam class जैसे यहाँ पे समटाइम्स आई डोंट कम, बट घर पे मुझे सुनाता है क्योंकि किचन में स्पीकर है ना, तो सुनना आता है. और इवन संडे फीस्ट किचन में या प्रसादम हॉल में, इवन लाइक व्हेन डिवोटीज आर संडे फीस्ट प्रोग्राम्स वी डू, आई हैव सीन दिस हैपन, even when devotees are all taking prasadam, I have seen this in Chapati happening, कि जब devotees प्रसाद लेते हैं तो एक devotee read करता है प्रभुपाद जी का बुक. Because क्यों? प्रसादम लेना भी डिवोशनल सर्विस है. टेकिंग प्रसादम इज टेस्टिंग कृष्णा. अभी आप कृष्ण को कैसे टेस्ट कर रहे हैं अभी यहाँ पर? बाय हियरिंग. व्हेन कृष्ण टेक्स, अभी हम लोग यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले ना, प्रभुपाद जी बोले लॉर्ड श्री कृष्ण द एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज अट्रैक्टिव नॉट ओनली इज पर्सनल फीचर. भगवान केवल अपन स्वरूप में नहीं अट्रैक्टिव है, भगवान तो सुंदर है, राधे गोलोक बिहारी इज एकदम मेस्मराइजिंग है, लेकिन बट ऑल्सो इन इज ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज. अब ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी क्या है? इट इज सो बिकॉज द एब्सोल्यूट इज एब्सोल्यूट बाय हिज नेम. भगवान का नाम जो है वो एब्सोल्यूट है. फेम, भगवान का कीर्ति जो है, भगवान के जो ग्लोरी है, जो भागवतम है, जो भगवत गीता है. फॉर्म, भगवान का स्वरूप जो है, भगवान के पास टाइम्स, भगवान के एंटोरेज. भगवान के एंटोरेज क्या है?
भगवान के सब पार्षद, सब डिवोटीज हैं। आप 7 of the 7 पढ़िए। श्रीमान कृष्ण गोस्वामी ने प्रभुपाद जी से पूछा था, प्रभुपाद हाउ मेनी प्योर डिवोटीज आर देयर ऑन द प्लैनेट? बोले ये पृथ्वी पर कितना प्योर डिवोटीज है? तो प्रभुपाद जी बोला, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ISKCON? As soon as you become connected to Krishna, you become absolute. But absolute का मतलब नहीं है कि you can do any nonsense. You at least have to behave in the right way. तो भगवान के एंटोरेज, फिर भगवान के पैराफिनेलिया, भगवान के पैराफिनेलिया, भगवान के, you know, even this mic is Krishna's paraphernalia, these tables are Krishna's paraphernalia, these mats are Krishna's paraphernalia, this everything belongs to Krishna. So we should make an effort to see, you know, putting. Now, how do you serve the mat? You serve the mat by putting it in the right place. You put it in the right place. हम लोग सोचेगा कि कृष्णा के सर्व मतलब, you know, just actually if you read पंचरात्र प्रदीप, नारद पंचरात्र, जो हम लोग के डीटी वर्शिप के प्रोसेस देता है, तो what is deity worship? Deity worship is worshipping the deities, worshipping the dham, worshipping the Tulasi, worshipping the Bhagavatam, worshipping the devotees, and worshipping Krishna's paraphernalia. So everything is part of Krishna's paraphernalia. Just like we do Achman, so we call upon all the holy rivers, na? Ganga cha Yamuna chaiva, right? So that's worshipping, so that you worship Achman, then it becomes. So Krishna's paraphernalia. So even by hearing, अभी यहाँ पे अटेंटिव हियरिंग की बात नहीं की। अटेंटिव हियरिंग इज द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रांसलेशन जो प्रभुपाद जी, नारद जी बोलते हैं कि पावरफुल इंपैक्ट कैसे होता है और इमीडिएट इंपैक्ट कैसे होता है, एंड दस लिसनिंग अटेंटिवली। पहले तो साउंड वाइब्रेशन होना चाहिए। जब क्लास होगा नहीं, या तो जब रीडिंग ये होगा नहीं, प्रभुपाद जी का लेक्चर हम लोग बजाएंगे नहीं, या तो लाइक वी आर नॉट हियरिंग डिवोटी स्पीक, तो एक्टिविटी नहीं होगा, तो देयर इज नो हियरिंग। बट जब हियरिंग होता है, एंड दस लिसनिंग अटेंटिवली का मतलब खाली नहीं है कि हम लोग सबको ऐसे आंखी खोल के बैठा देगा, लेकिन आंखी खोल के हम लोग सोया है। वी कैन डू दैट एज वेल। अटेंटिव हियरिंग मतलब है, वेरी सिंपली प्रैक्टिकल सेंस में हम लोग के लेवल पे हम समझे सको, अटेंटिव हियरिंग इज एवरी टाइम भागवतम सुनो, एवरी टाइम क्लास सुनो, जस्ट एट द लीस्ट जस्ट लर्न वन थिंग, जस्ट लर्न वन थिंग। हम लोग मानो एग्जाम्पल दें, बोले कि ऑल ऑफ अस गो मार्केटिंग, हम लोग जाए सवेरे सवेरे, सैटरडे है, सवेरे 6 बजे मार्केट जाओ और एक भी सब्जी नहीं खरीदो और घरे वापस आ जाओ, तो सकता है बोले हम गेरा मार्केटिंग करें। कुछ तो खरीदा नहीं, एटलीस्ट एक भी कुछ खरीद के लाएगा, एक भिंडी भी खरीद के लाएगा या एक फल भी खरीद, देन कैसे आई वेंट मार्केटिंग, बट आई ओनली गॉट दिस। तो हम लोग ऐसे कभी भागवतम क्लास में बैठेगा, तो हम लोग वी मस्ट लर्न समथिंग, वी मस्ट टेक वन थिंग दैट विल मेक यू। I like Prabhuji, takes notes. It's very nice. I remember my father-in-law, Nandavaraju Prabhu, he sits in the Bhagavatam class, he always keeps a, actually Srila Gurudev हमको, तमाम कृष्ण गोस्वामी महाराज हमको कहते थे, keep a notebook in your, I know mobile phone है, technology है, voice recording कर ले सको, but trust me, these are all lazy means है। बिकॉज कहा है, हम लोग अपन सेंसस के एक्टिवली एंगेज नहीं करेगा। अम्बरीश महाराज बोले सेंसस के एक्टिवली एंगेज करो भगवान की सेवा में, देन यू मेक प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजी इज नाइस, एडवांसमेंट करा है, बट टेक्नोलॉजी इज किलिंग आवर ब्रेन्स ऑल्सो। हम लोग सोचता है ब्रेन से हम लोग टेक्नोलॉजी बनाया है, एक आदमी 2 आदमी के ब्रेन से, रिसर्च ग्रुप से, कंपनी के रिसर्च से टेक्नोलॉजी बने हैं, बट लाखों करोड़ों के ब्रेन मार देवा जाए, बिकॉज की पीपल सब इस पे रिलाई करें। तो कॉम्बिनेशन है, रेसिपी में कॉम्बिनेशन है, अटेंटिव हियरिंग, वी शुड हियर वेरी अटेंटिवली।
My taste for hearing of the personality of Godhead increase at every step. तो कैसे सबको जानो कि तुम अटेंटिव हियरिंग है? कैसे सबको जानो कि हमारा अटेंटिव हियरिंग है? भगवान के बगल अट्रैक्शन बढ़े। यहां बोले है माई टेस्ट फॉर हियरिंग। कैसे सबको जानो अटेंटिव हियरिंग है? द मोर यू हियर, द मोर यू वांट टू हियर, द मोर यू चांट, द मोर यू वांट टू चांट, द मोर यू सर्व, द मोर यू वांट टू सर्व। दैट इज, जब ऐसे नहीं रही, वेरी सिंपल है, कृष्णा इटर्नल है, कृष्णा सनातन है। सनातन मतलब नो एंडिंग। जब हम लोग के सेवा के एंड हो जाए, तब तो ये अप्लाई नहीं, द मोर यू सर्व द मोर यू वांट टू सर्व, द मोर यू चैंट द मोर यू वांट टू चैंट। तो इट मल्टीप्लाइज, इट मल्टीप्लाइज। तो इंक्रीज एट एवरी स्टेप, इंक्रीज एट एवरी स्टेप। तो हम लोग के मांगे लाइफ में मेजरमेंट रहे, that we are increasing. I have read Bhagavad Gita, I am reading first canto, Srimad Bhagavatam, second canto, third canto. I am chanting 4 rounds, I am chanting 8 rounds, I am chanting 16, I am chanting 32. As you progress, you should do more and more. और material जो engagement है, वो धीरे 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 कम होना चाहिए. You can't snap it out, सीधा काटा भी नहीं जा सकता है. It has to be a gradual process. तो वैसे बोले कलयुग में ज्यादा करके ई प्रोसेस है. द मोर यू अंडरस्टैंड कुछ, हम लड़कन के स्कूल का करे भेजता है, सो दैट वो लोग समझ जाए कि लाइफ के गोल कौन सी है, इन मटेरियल सेंस लाइफ के गोल कौन सी है, और नौकरी जो भी करे मांगे उसके सब्जेक्ट मैटर के बारे में समझ पड़ी ना. तो बाय एजुकेशन वो होता है. इसीलिए भागवतम जो है, जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, इज डन बाय हियरिंग. तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि भगवान अपने कोजलेस मर्सी से प्रकट होते हैं. कृष्ण इज हियर, दिस अपॉर्चुनिटी फॉर अस, दिस टेम्पल, दिस एसोसिएशन टुडे, एवरीवन्स प्रेजेंस हियर टुडे इज एक्चुअली ओनली पॉसिबल बाय कृष्णस कोजलेस मर्सी. कोजलेस मर्सी. हम लोग नहीं सकता है बोले कि हम बहुत बहुत पुण्यशाली व्यक्ति है, हम बहुत बहुत पुण्य किया है तब आज हम अधिकार है कथा सुने के. इट इज ऑल बाय कृष्णस कोजलेस मर्सी. तो भगवान के कोजेस में से कहा बोला जाए, नंबर 1, एवरीथिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज परफेक्ट. अभी हम लोग के यहाँ पे हम लोग बोलेगा कि ओ ये डिवोटी परफेक्ट है, डिवोटी परफेक्ट नहीं है, डिवोटी ऐसे, वो डिवोटी वैसे. स्पिरिचुअल में तो सब डिवोटी परफेक्ट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. तो व्हाट वुड बी योर चॉइस? आप मांगेगा परफेक्ट सिचुएशन में रहे कि ट्रबल सिचुएशन में रहे? अभी हम लोग भी तो यहाँ पे भी कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिस करता है. यहाँ तो मतलब आई एम मीनिंग टू से इन द मटेरियल वर्ल्ड हम लोग प्रैक्टिस करता है, तो हम लोग के कोई तकलीफ दे लगे या कोई से नहीं बने हैं ये है, तो हम लोग दूर हो जाता है. और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबको इम्परफेक्ट है. तो माय क्वेश्चन इज कि आप कौन सिचुएशन में रहे मांगेगा, परफेक्ट सिचुएशन में कि ट्रबलसम सिचुएशन में? परफेक्ट सिचुएशन में. हम लोग परफेक्ट सिचुएशन में. तो भगवान के धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में सब परफेक्ट डिवोटीज है, परफेक्ट सिचुएशन है. भगवान के सेवा के वास्ते इंग्रेडिएंट्स कोई कंटेमिनेटेड नहीं है, और एवरीथिंग इज इन अबंडेंस. सो व्हाट अट्रैक्ट्स कृष्ण टू द मटेरियल वर्ल्ड? व्हाट इज देयर अट्रैक्टिव इन द मटेरियल वर्ल्ड दैट कृष्ण शुड लीव द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड कम टू द मटेरियल वर्ल्ड? Do you get the point? The point is कि कृष्णा के कोजलेस मर्सी है, भगवान के अहितु की कृपा है. यहाँ पे कुछ है ही नहीं जो कृष्ण सके एंजॉय करे. कृष्ण विल कम फॉर द डिवोटीज, ऑफ कोर्स कृष्ण कम्स फॉर हिज डिवोटीज. परितरणाय साधूनाम. These devotees are wonderful people. But in some way you can say these devotees are also a little stupid people because they chose to leave Golok Vrindavan Dham in the first place. They made a mistake. गलती क्या है? गलती करते हुए भगवान फिर भी आते हैं. भगवान फिर भी आते हैं, और एक के टाइम नहीं आते हैं, इतना अवतार लेते हैं. और एक के युग में नहीं आते हैं, युग युग आते हैं. 1000 times चतुर्युग का
साइकिल होता है उसमें आते हैं, उतना भी काफी नहीं है. फिर once in a day of Brahma he comes himself. This is all Krishna's causeless mercy. Without force, Krishna's without. कभी कभी हम लोग बोलता है ना, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ना से ही प्रॉब्लम हमारे ऊपर आएगी. इट्स नॉट, आई एम नॉट रिलेटेड टू इट एनीवे, लेकिन आई एम इन द ट्रबल, आई एम इन द सूप. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग विद कृष्णा. कृष्णा के यहाँ आए कि कोई जरूरत नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब चीज परफेक्ट है, लेकिन हम लोग के वास्ते कृष्ण हैज टू टेक दिस ट्रबल. कृष्ण हैज टू कम एंड परफॉर्म ऑल दिस पास्ट टाइम सो दैट वी कैन. भले men are naturally apt to hear stories and narrations of various personalities. बोले इंसान के नेचुरल इंक्लिनेशन है, हम लोग मतलब कोई बारे में सुने, कोई बारे में बात है तो हम लोग मजा पकड़ ले. न्यूज़पेपर में भी देखो कोई बारे में बात है, टीवी में भी कोई बारे में बात है, तो बोले नेचुरल इंक्लिनेशन है. तबे से भगवान आए के पास टाइम करे है, सो वी कैन टॉक अबाउट कृष्णा, कृष्णा के बारे में हम लोग के इंटरेस्ट लग गई, हम लोग के इंटरेस्ट लग गई. कृष्णा गोपी लोगों के संगे पास टाइम्स करे तो हम लोग के इंटरेस्ट लग गई पड़ेगी. या तो कोई जैसे अभी हम लोग सबको एकदम चौकस रहता है ना, वो पुतिन नहीं जानो कब अमेरिका के ऊपर मिसाइल कर दे, या तो नो व्हाट हैपेंस चाइना कुछ कर दे. तो भगवान आए के महाभारत के पास टाइम प्रेजेंट करे, तो जिसका ऐसे इंटरेस्ट है तो अभी शकुनी ऐसे करेला है, अभी दुर्योधन ऐसे करेला है, द्रौपदी के चीर हरण नहीं, तो ऐसे इंटरेस्ट हो जाए आदमी के, बिकॉज वी नेचुरल इंक्लिनेशन है हम लोगों के. सो दैट्स हाउ वी डिस्कस. तो भगवान ऐसे आके प्रेजेंट करता है. तो तब ऐसे प्रभुपाद जी हम लोग देख सकते हैं. एंड प्रभुपाद जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब कि प्रभुपाद जी ने क्या किया है, हम लोग केवल भागवतम पढ़े, वी गेट द नॉलेज ऑफ all the scriptures, because प्रभुपाद जी पपट में सब पर्याप्त स्टोरीज बता दिया है, जो चीज हम लोग के माइंड अट्रैक्ट करी टू कृष्णा प्रभुपाद जी प्रेजेंट कर दिया. तो फिर बोले कि विदाउट नोइंग दैट बाय सच एसोसिएशन वन सिंपली वेस्ट वैल्यूएबल टाइम. ये ला बहुत डिफिकल्ट है ओवरकम करो, ये बहुत डिफिकल्ट है. मे बी वेजिटेरियन हो जाओ, इजी है, अपन सब सिंपल एक्टिविटीज छोड़ दो, इजी है. बट टू नॉट वेस्ट वैल्यूएबल टाइम इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. कैसे? बिकॉज कि हम लोग ये चीज बारंबार करता है. एंड आई डोंट ब्लेम एनीवन एल्स, बट आई टेक माय ओन एग्जांपल. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ मटेरियल एंटेंगलमेंट. इंटरेस्ट हम लोग के प्रायोरिटीज, हम लोग के प्रायोरिटीज ऐसे हाउ डू वी मेक ourselves or our mind convinced कि Krishna consciousness is the most important priority of life. ये कैसे difficult है? The more material facilities we have, the more material entanglement we have, the more difficult it is to make Krishna consciousness your priority. उतनी difficult है. लोग सब सिंपल लाइफ नहीं मांगे, सबको इन कॉम्प्लिकेटेड लाइफ. वी वांट ऑल मटेरियल फैसिलिटी. याद करना, जितना मटेरियल फैसिलिटी मतलब उतने अंधकूप के गहराई. मैं सोच रहा हूँ, जस्ट थॉट बाय लुकिंग एट भगवती माता जी, वन थॉट जस्ट केम टू माय माइंड जस्ट नाउ, जस्ट राइट अवे. मैं सोच रहा था, द थॉट दैट केम टू माइंड कि भगवती माता जी, वासुदेव प्रभु, भुवन मोहन प्रभु, they took shelter of Srila Prabhupada, and they were able to contribute so much to the Krishna consciousness of this country. इतना जन के devotee सबको बना ना. They started, they first invited Prabhupada, and that's where everything, Prabhupada's lotus feet touched this country. और ये country में इतना Krishna consciousness हो गया. So many, you see, 1, 2, 3, 4 temples with installed deities, and then you have 15, 20 preaching places, gatherings and all this. This is all impact of Srila Prabhupada's blessings. तो मैं सोच रहा था, on this point, when they met Prabhupada, they had Prabhupada, but there was a combination of attentive hearing. राइट. तो प्रभुपाद जी बोला कि मंदिर बनाओ,
तो दे गेव देयर लाइफ टू मेकिंग दिस. बट वो अटेंटिव हियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और वो एलिमेंट है कि while वासुदेव प्रभु एंड भगवती माता जी एंड मोहन प्रभु, they had, you know, like they are the founders of Punjas, whatever Punjas business we know today, they are the founders, right? Of course, you know, their father, and then they continued, they grew the business. लेकिन मैं पॉइंट ये बताना चाहता हूं कि when they met Prabhupada and they heard Prabhupada, the empowerment came to them because they reduced their material facility. They have all the money. They have millions of dollars to enjoy this material facility. जिसके वास्ते हम लोग work hard करता है, they already have that facility. But having the facility is not important at all. The most important thing is being able to give it up. Being able to simplify your life. That will give the combination of attentive hearing and association of the Bhakti Vedantas. तब जो ये भक्ति का रेसिपी है, साधु और डिसाइपल, जब ये रेसिपी होगा तब परफेक्ट भक्ति का जो प्रसाद है या फूड है, जो सर्विंग है, जो केक है, वो बनेगा. नहीं तो नहीं बनेगा. अदरवाइज यू नो वी कैन कीप, मिक्सर करके ओवन में रखोगे, केक फूलेगा नहीं. मिक्सर करके ओवन में रखोगे, जर जाएगा. कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी ऐसे होता है. हम लोग के जब मटेरियल फैसिलिटी भगवान बहुत दे देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग जरने ला काम करे लगता है. क्या जरे लगता है? जरने ला काम, नॉट एनवियस, मतलब वी कैन बिकम ऑफेंसिव बाय विच वी कैन डिस्ट्रॉय आवर डिवोशन. आई गेट रिमाइंडेड ऑफ जयराम प्रभु, ये स्टोरी बताया होगा पहले भी, बट इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी. एक टाइम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वो जा रहे थे, तो एक गांव से जा रहे थे, तो वहाँ पे एक बूढ़ी लेडी थी, वो डिवोटी थी. तो भगवान कृष्ण को सर्व किया, आए भगवान को स्वागत किया, सर्व किया. तो अर्जुन बोला भगवान को कि उसको ब्लेसिंग दे दो, ब्लेस कर दो ना. जो भी भगवान को सेवा करता है भगवान उसको ब्लेस करते हैं. तो बोला भगवान उसको ब्लेस कर दो. तो भगवान बोला, उसको ब्लेसिंग दे दिया भगवान कि वो बूढ़ी गरीब लेडी थी, उसके पास एक गैया था. वही गैया के दूध निकाल के दूध बेचती थी, मक्खन बनाती थी, पनीर बनाती थी, वही उससे उनका चलता था. तो भगवान उसको ब्लेसिंग दिया कि इसकी गैया मर जाए. तो फिर वहां से आगे गए तो आगे दूसरा एक गांव था. दूसरा गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी था. तो उसको मैसेज मिला, प्रभु जी जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस स्टोरी, अदरवाइज द एसेंस फक मिस हो जाएगा. तो उसको मैसेज मिला कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आ रहे हैं. तो ही मेड अ बिग अरेंजमेंट, बिग रिसेप्शन, ऑल द पीपल, फूड, नो, पूरा सिटी डेकोरेट कर दिया, सब कुछ कर दिया. So Krishna went there, they had a big reception and everything happened. Krishna was served so much prasadam and everything. तो कृष्ण बोले कि अच्छा जो घर का मालिक है वो कहाँ है? बोले तो बोले he is a big businessman, he is so busy. So but he has, you know, very big downer, he has made all the arrangements for your service. तो अर्जुन बोला कि very nice ना. भगवान को बोला आप इसको भी आशीर्वाद दे दो. भगवान बोला इसका आशीर्वाद है कि इसका बिजनेस और भी बढ़ जाए. तो अर्जुन बोला भगवान उसके पास एक ही गैया था, आप उसके गैया बोला मर जाओ, इसके लगे तो सब कुछ, इसके बोलता और बढ़ जाओ. तो भगवान बोले जो बूढ़ी व्यक्ति थी, स्त्री थी, उसके एक के अटैचमेंट बचा है गैया. तो बोले अगर वो भी खलास हो जाए तो बैक टू गॉडेड चला जाए. और बोले जो बिजनेसमैन है उसके लगे तो हमें सेवा करे के टाइम नहीं है, तो उसके और दूर कर दो, और बिजी कर दो, और दूर हो जाए. तो पॉइंट रहा कि वी हैव टू टेक आउट टाइम. और टाइम एक चीज है निकालो, और दूसरा चीज है टाइम हम लोग के कैसे निकली. टाइम हम लोग के नहीं निकल पाए. जय श्री श्री गोनिताय की जय, श्री श्री राधा गोलोक बिहारी भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय. प्लीज कीप सिटिंग, कृष्ण विल लाइक हियरिंग हिज ग्लोरी. विल चैंट द गोविंदम प्रेज इन अ व्हाइल. तो द पॉइंट इज टाइम हम लोग के पास नहीं है. और टाइम हम लोग के पास काहे नहीं है? बिकॉज कि हम लोग के लगे मटीरियल डिजायर. मटेरियल डिजायर्स के कारण से हम लोग के मटेरियल एंगेजमेंट करे पड़े, मटेरियल काम करे पड़े, हम लोग के कमाई करे पड़े. तो ये सब चीज हम लोग के आदमी बोलिए प्रभु जी हमारे लगे टाइम नहीं. तो
तुम्हारा लगे टाइम सब है, प्रॉब्लम है हम लोग के लेविश लाइफस्टाइल या तो बहुत ज़्यादा मटेरियल डिमांड्स, तभी हम लोग लाइफ सिंपल नहीं कर पाता है। लाइफ हैज टू बी सिंपल, सिंपल बाय चॉइस। जैसे भी आप लोग सब कोई बैठा है, कोई टी शर्ट पहरा है, कोई सेफ्रॉन पहरा है, कोई धोती पहरा है, कोई पैजामा पहरा है, कोई ड्रेस पहरा है, कोई साड़ी पहरा है। आप लोग सवेरे उठा है तो अपन क्लोजेट में से या नहाए के जब निकला है तो अपन क्लोजेट में से कपड़ा उठा के पहरा है। I'm sure जयचंद्र चैतन्य करा हुई सवेरे उठा हुई तो गया हुई तो शायद पिंक टी शर्ट पे हाथ रखा होगा या ब्लू पे रखा होगा, फिर सोचा होगा कौन ला पहरी। यू मेड अ चॉइस एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर लाइक दैट। तो इसे हम लोग के अपन लाइफ में राइट चॉइसेस करे पड़ी, राइट चॉइसेस करे पड़ी, और चॉइस हम लोग के सिंप्लीफाई करे पड़ी। एवरीवन इज हैविंग प्रसादम, वी आर ऑल लिविंग, वी आर ऑल ब्रीदिंग। हम लोग के कोई दुख में नहीं है, कोई दुख में नहीं है। यस्टरडे वन मैन केम टू माई फार्मेसी, एक लड़का आए तो एक S26 ली स्टेप 2 अपन बेबी के वास्ते और एक फीडिंग बॉटल ली। टोटल प्राइस हो गया उसके $50। So the Fijian boy told me, well, I got my wages for working 1 week and my wages is $90. बोले sometimes I go home, बोले आज हमें फ्राइडे को मैं तलब मिला है, बोले संजय कम करे जाए, बोले हमारे हाथ में खाली 70 सेंट पैसा बचा रहे and I have to survive the next week until I get my pay. हम लोग यहाँ पे जितना जने बैठा है, is anyone like this that Monday morning you only have 70 cents in your hands to survive the whole week? कोई के नहीं इसे, कोई के नहीं, छोटा लड़कन के भी नहीं। उनके स्कूल पॉकेट मनी भी ज़्यादा ही हुई, अबे ज़्यादा देता हुई नहीं देता है तो बताना काका के 70 सेंट से ज़्यादा होंगे। पॉइंट इज लाइफ कैन बी सिंपल। हम लोग की लाइफ बहुत ऑपुलेंस है। अगर हम लाइफ सिंपल करेगा हम लोग के लिए टाइम बच जाए, हम लोग के लिए टाइम बच जाए। वी हैव कम बैक टू द श्लोक, लाइक नारद मुनि we will be able to benefit from the association of devotees and Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is the only scripture. When Krishna departed, the first question was asked, when Krishna departed, where did dharma go? The dharma went into Srimad Bhagavatam. So every devotee, every ISKCON devotee, every Krishna devotee should read the Bhagavatam. If you have not read the Bhagavatam, you can't say I am dharmic, because dharma is in the Bhagavatam. So Prabhupada had a marathon to write this Bhagavatam first. At the age of 70, within 14 years, within 12 years, Prabhupada gave this book. 70 वर्ष के आदमी, जैसे हम लोग के बुढ़ा बाप रहे, made a big property I can inherit. This is what Prabhupada has given us to inherit. और हम लोग इसके इनहेरिट नहीं करता है। मटेरियल जाते ही हम लोग कोर्ट कचहरी कर देगा कि हमारा शेयर मांगे मिले हमें। अरे भागवतम या प्रभुपाद जी पूरा दे दे, सब डिवोटी लड़ो, हमारा शेयर मांगे मिले हमारा शेयर भागवतम मांगे मिला। So thank you very much for, if there's any question you can ask me after this, but Gonita, Shri Radha Golok Bihari Sitaram Lakshman Bhakta Hanuman ki jai. So let us rise to greet the deities. Hare Krishna.
लीलां